Hello everyone, I am Professor Harpreet Bhamra and today again I am back with our question and answer sessions. Today we will discuss very important question from the point of view of our board exams, that is, what is shares? Explain its features. Okay, so before that I'll explain you what is share. Okay, what is share? Let's take an example that I have bought few shares of ABC company. ABC company has issued 10,000 equity shares of rupees 10 each. So how many rupees it will be? 10,000 into 10 is 1 lakh rupees. Now, I don't have 1 lakh rupees to buy 10,000 shares. So, what I will do here is, I will buy only 5 shares because I have that much amount with me. So, I will buy 5 shares only. So, the count here begins from 1, 2, 3, 4, 5, 6 and it goes on till 10,000. So, here any number of share I can buy with whatever capacity I have. Okay, so I have bought 5 shares. The next friend may buy 10 shares of same company. Okay, when you buy shares, you pay money to the company. Here the company in return will give you dividend. That is the interest. After they earn profit, they give you some share in your investment. Understood? So share is a transferable property. It can be bought by anyone and at any point of time you can sell it. There is no restrictions on keeping the shares of one company for the lifetime. Okay? So let's see this in our paper. How to describe what is share and then how to write what is explain its features. Now there are two things here. The board can ask you full question or they can put this question in write short notes. When they are putting this question in write short notes, you will directly write the features of shares. You are not going to define the shares, you are not going to write the meaning of shares. Okay? But when the shares are asked in brief answers or in the question number 7 or question number 6, there we have to elaborate the answer. So now what are shares? What are its features? We have to see how to write it. So let's see it. I have made it in a very simple form so that आप सब उसको लिख सकें. Let's see. अभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में. तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है हम उसके बारे में पहले आंसर लिखेंगे. सो हमारे इस क्वेश्चन में व्हाट इज शेयर्स, एक्सप्लेन फीचर्स. तो हम पहले आंसर करेंगे व्हाट इज शेयर्स. व्हाट इज शेयर्स में हम पहला लिखेंगे मीनिंग ऑफ शेयर्स. मैंने आपसे पहले भी कहा है जो मैथ्स से एसपी आते हैं और जो वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें आंसर्स लिखने नहीं आते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है कि वो सिंप्लीफाई करके लिखा है ताकि इतने सारे पॉइंट्स में से वो अगर 4 पॉइंट भी लिख लेते हैं तो उनका मीनिंग प्रॉपरली बन जाता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. पहला पॉइंट हमारा है शेयर इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड. मैंने आपसे एग्जाम्पल में बोला था कि एबीसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, दैट इज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. 10,000 शेयर्स हैं और कितने के हैं वो? 10 रुपए के. अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो वो 1 लाख रुपीज होते हैं. 1 लाख रुपीज कैपिटल ऑफ दैट एबीसी कंपनी. अब वो 10,000 शेयर को कंपनी बेचना चाहती है. अब एक ही आदमी 1 लाख रुपए के शेयर्स नहीं खरीद सकता एट अ टाइम बिकॉज हमारे पास फंड्स नहीं होंगे या हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते. बहुत सारे रीजंस है इसके लिए. इसीलिए उस शेयर्स को हम टुकड़ों में खरीदते हैं. जैसे नंबर 1 से शुरू हुआ है तो 10,000 के नंबर तक हम कितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं. ठीक है. सो शेयर इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड. सेकेंड पॉइंट, इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट.
अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 शेयर भी खरीद सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं 100 शेयर भी खरीद सकती हूँ, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. It is a very small unit, a single unit of our big share capital. Okay, the next is total capital of company is divided into small parts. ये जो 10,000 शेयर्स हैं उनको हम टुकड़ों में स्प्रेड करते हैं, उनको हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं. इसके n नंबर ऑफ ओनर भी हो जाते हैं और n नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाते हैं सब लोगों में. Next is it helps the public to subscribe to the capital in smaller amount. जैसे मैंने कहा 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन हम अगर 5,000 6,000 कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उन लोगों के लिए, उस पब्लिक के लिए बहुत इजी है इन शेयर्स को खरीदना. सो इसीलिए बोला जाता है इट हेल्प्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट. अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स. मैंने आपसे कहा अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं 100 भी खरीद सकती हूँ, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं 200 भी खरीद सकती हूँ. यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आप कितने शेयर्स खरीदोगे एंड ऑल. ठीक है. लास्ट पॉइंट हियर इज जो बंदा वो शेयर खरीदता है, जो भी पर्सन वो शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर हो जाता है उस कंपनी का. शेयर होल्डर का मतलब है थोड़ी सी हिस्सेदारी आपकी उस कंपनी में बन जाती है. You become the owner of that company and there is some ratio. Understood? Let's revise the answer again. Share is a unit by which share capital is divided. Share is a small unit of the capital. Total capital of company is divided into small parts. It helps the public to subscribe to the capital in smaller amount. A person can purchase any number of shares. A person who purchases shares of a company is known as shareholder. अब जो मैंने सर्कल किया है वो आपके लिए हाई पॉइंट्स है. ठीक है, हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं वो, जो आपको याद रखने मिलेंगे कि आपको कौन से पॉइंट में क्या क्या लिखना है. वर्नाकुलर मीडियम से आने के बाद बहुत मुश्किल होती है, वो मैं समझ सकती हूँ. इसीलिए आपको वो हेड पॉइंट्स याद रखने हैं, हाइलाइट्स याद रखनी है. आप सेंटेंस मेकिंग तो कर ही लो. ठीक है. मीनिंग होने के बाद अब हम जाएंगे डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ शेयर्स जो दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84. अगर आपको याद रहे तो ही आप ये लिखना. अगर आप ये नहीं याद है और आपने रॉन्ग लिख दिया, आपका पूरा डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा. इट गिव्स बैड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर. ओके, सो अगर आपको थरोली याद है उसका सेक्शन तो ही आप लिखना, नहीं तो आप नहीं भी लिखोगे. तो यू जस्ट मेंशन दैट द कंपनीज एक्ट 2000 डिफाइंस, बाकी आपका डेफिनेशन. लेट अस बाय हार्ट द डेफिनेशन नाउ. डेफिनेशन एक ऐसी चीज है जो हम अपने मन से नहीं लिख सकते, किसी ने ऑलरेडी लिख के दी हुई है. सो इसे हमें थरोली वैसे ही लिखना है. वो लिख के हमें उसको प्रॉपरली अंडरलाइन करना है, वो हमारे आंसर का वेटेज बढ़ा देती है. ओके, सो लेट अस बाय हार्ट. Section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013 defines share means a share in the share capital of a company and include stock. Okay, what is it? Share means a share in the share capital of a company and include stock. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के भेजना, मैं जरूर उसको वर्कआउट करके आपके लिए न्यू वीडियो लेके जरूर आऊंगी. नेक्स्ट हम जाएंगे ऑन फीचर्स ऑफ शेयर्स. जो मैंने ब्लैक में लिखा है वो हमारे पॉइंट्स हैं, जो मैंने रेड में लिखा है वो एक्सप्लेनेशंस हैं जो आपको याद रहने में इजी रहेंगे. ये सब मैंने ऐसे हाइलाइट्स बनाए हैं जिससे आप अपने वो पॉइंट्स के अंदर लिखना क्या है वो आप याद रख सकें. अक्सर क्या होता है आप पॉइंट्स याद कर लेते हैं, आपको पॉइंट्स थरोली याद होता है पर अंदर उसमें क्या लिखना है वो आप नहीं याद रख पाते, जिससे क्या होता है कि आपका 10 मार्क्स का आंसर का मार्क्स है और आपको सिर्फ मिलते हैं 3 या 4 मार्क्स. फिर आप बोलते हो कि मैंने इतना लंबा आंसर लिखा फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे. वाई? बिकॉज क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट.
क्वांटिटी तो आप कितना भी लिख सकते हो, आपको क्वालिटी देना है कि अगर आप लिख रहे हो कोई पॉइंट तो आपको वो पॉइंट के बारे में पूरा मेंशन करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओनरशिप, फर्स्ट पॉइंट इन फीचर्स ऑफ शेयर इज ओनरशिप। किसका ओनरशिप होता है? जो शेयर खरीदता है शेयर होल्डर हो जाता है कंपनी, ठीक है, तो उसका ही ओनरशिप हुआ। द शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। द शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं कोई दुकान में जाऊं और मैं चॉकलेट खरीदूं तो मैं उसे पैसे देती हूं और वो मुझे चॉकलेट वापस देता है, मैं घर पे चॉकलेट लेके आती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई शेयर्स खरीदूं किसी कंपनी का तो मैं कंपनी को मेरे घर नहीं लेके आती, राइट? तो मैं कैसे पता करूं कि मैंने खरीदे हैं शेयर्स? तो उसके लिए शेयर्स जो है वो नंबर्स में होते हैं और वो नंबर मेंशन किए होते हैं एक शेयर सर्टिफिकेट में। आपने कभी देखा होगा, फिक्स डिपॉजिट करते हैं हम बैंक्स में तो एक हमें पेपर मिलता है जिसमें टेन्योर लिखा होता है, टाइम कि इतने टाइम तक ये पैसे हैं और ये टाइम खत्म होने के बाद इस पे हम इतना इंटरेस्ट देंगे। ऐसे ही हमारे शेयर सर्टिफिकेट में हमारा डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा होता है, दैट इज कितने नंबर से कितने नंबर तक शेयर्स है। अभी 1 से लेके 10,000 नंबर्स हैं शेयर के, ठीक है, तो समझो मेरा नंबर है 35 से लेके 40, तो 35 to 40 शेयर्स मेरे हैं, दैट इज 5 शेयर्स, ठीक है, वो मेंशन किया होगा मेरे शेयर सर्टिफिकेट में। सेकेंड पॉइंट, डिस्टिंक्टिव नंबर, शेयर्स ऑफ डिस्टिंक्टिव नंबर मेंशन्ड ऑन शेयर सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ टाइटल। मेरे पास क्या एविडेंस है कि मैंने शेयर्स खरीदे हैं? जैसे कि मैं चॉकलेट खरीदूं तो मेरे पास प्रूफ है, शेयर्स खरीदूं तो क्या प्रूफ है? तो वो प्रूफ है मेरा शेयर सर्टिफिकेट। अगेन, evidence of title, share certificate is an evidence of title. Shares are not visible, right? Shares are not visible. It is shown by SC, that is our share certificate. Understood everyone? Next point here is value of share. Value of share, there are always 3 values. One is the face value, second is the issue price, third is the market price. Face value is the value which is mentioned in the share certificate and in the memorandum of association, that is SC our share certificate, MOA that is our memorandum of association, जो हर एक कंपनी का अपना अपना important document होता है। इशू प्राइस वो होता है जिस दाम में कंपनी शेयर बेच रही है, दैट इज प्राइस कोटेड बाय कंपनी। थर्ड आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर किसी कंपनी का प्राइस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मार्केट के अंदर तो उसके शेयर्स थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। सो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अभी के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो डिमांड बढ़ चुका है हमारे N95 मास्क का, ठीक है। तो जो कंपनीज उसको प्रोड्यूस कर रहे होंगे उन कंपनी के शेयर्स डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम। लाइक अगर मैंने कोई कंपनी का शेयर्स खरीदा है तो मुझे भी कोई एक्सपेक्टेशंस है वहां से, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा वहां से? तो मुझे मिलेगा उनके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, उस हिस्से को हम बोलते हैं डिविडेंड। सो लेट्स सी दैट इनकम एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द नेट प्रॉफिट कॉल्ड एज डिविडेंड। अपने अपने जो भी शेयर्स खरीदे हैं उनके हिसाब से हमें हमारा डिविडेंड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब है कि आपके शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं या नहीं। सो आपके शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं। n number of times the shares are transferred from one person to another. Okay, shares are freely transferable as mentioned in AOA, that is our article of association. Property of shareholder. Property of shareholder क्या है? हमारे शेयर्स। शेयर्स प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर की, वो प्रॉपर्टी मूवेबल है। आज मैंने खरीदी है, कल मैं किसी और को बेचूंगा तो वो उसकी हो जाएगी। लास्ट पॉइंट हियर इज काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर में आते हैं 2 टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर, अनदर इज प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी वेरी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके,
equity shares and preference shares. I hope you all have understood this answer very well. If any problem is there, please mention on comments. I will definitely read and get back to you all. Thank you. Take care. Bye.